Hello student, welcome to all of you in class 9 and today I will teach you the first chapter of English of Behive Books and the lesson name is The Fun They Had. And before starting the chapter I would like to discuss summary of this chapter. So let's start it. The story begins with two children named Margie and Tommy. ये स्टोरी शुरुआत होती है दो बच्चों से whose name are Margie and Tommy. It takes place in a world of the future where computer dominate everything and the story is based on a world where everything is operated by computers, technologies and the gadgets. Moreover, it also shows how the concept of school and classroom has transformed completely. इसके अलावा this story also tells us how everything, in fact, class and schools also has been transformed in a virtual form. It's the year 2157 and Margie is writing in her diary about how Tommy found a book. This story belongs to the upcoming generation of the future generation and a girl whose name is Margie. She has a good habit of diary writing. So the topic of her diary entry is Tommy found a real book. The book was of Tommy's grandfather. ये बुक टॉबी के ग्रैंडफादर का है, उनके दादाजी का है. When he was a little kid, और ये किताब तब की है जब वो एक छोटे से बच्चे थे. Margie learned about how they used to print all the stories on paper back then. Now Margie earned the experience of a book which is not in the daily book, which is not in the virtual form. In fact, it is the real book. The words of this books are printed on the papers and it is very cranky and yellowish papers printed. Further, they read the book themselves and find the feeling of turning pages over rather funny. Now, both the children, Margie and Tommy, had the experience of reading the book which is printed on paper and they also enjoying the turning pages over rather funny and doing this they feel very funny. It was funny because they were not in the habit of reading still words, only once in motion, that too. It was funny. Both the children were very funny mood because before this, इसके पहले they had never saw any kind of books which is printed on papers. The books they have, जिस तरह की किताबें उनके पास होती थी, they were on the टेली बुक्स. वे टेली बुक्स होती थी. दे वर ऑन दी स्क्रीन. वे हमेशा स्क्रीन पे चलती रहती थी. इनफैक्ट दे वर नॉट अ स्टिल फॉर्म. वे शांत या स्थापित फॉर्म में नहीं होती थी. देयर आर नो बुक्स ऑन टेली बुक्स means their books were converted into the tele books. There is no name of any kind of printed book. They store them in TV sets and computers. Their books were in the form of TV screen and computers. After that, it takes on interesting turn when they discuss school. And now when they read in the book about the school, जब एक उस बुक में स्कूल के बारे में पढ़ते हैं, द स्कूल दैट बिलोंग्स टू द एंशियंट टाइम, उस स्कूल के बारे में जो एंशियंट टाइम से बिलोंग करता था, दे फील्ड प्लेजर, तो उन्हें खुशी होती है. मार्गी लर्न दैट स्कूल्स वेर वेरी डिफरेंट बुक बैक देन. नाउ मार्गी कंपेयर टू हर स्कूल टू दी स्कूल ऑफ द एंशियंट टाइम. अब मार्गी अपने स्कूल को और एंशियंट टाइम के स्कूल को कंपेयर करती है एंड इन द कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन में सी फाउंड दैट द स्कूल ऑफ द एंशियंट टाइम वाज वेरी बेस्ट. They had actual persons who were teachers because the teacher of the human being of the ancient time, क्योंकि प्राचीन समय के जो स्कूल थे उस समय जो टीचर्स थे, they were not robot. वे रोबोट नहीं थे. they were actual human being. वे मानव थे. they were men. It is surprising because she has only robots who teaches her. And Margie was also surprised. Margie काफ़ी surprised थी because before this, इसके पहले she had never heard about the teacher who is in the form of human being, क्योंकि इसके पहले उसने कभी पढ़ा भी नहीं था कि टीचर ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं. बिकॉज हर टीचर, उसके जो टीचर थे, ही वॉज अ रोबोट. वह एक रोबोट था. मोर ओवर, इसके अलावा सी डज नॉट लाइक स्कूल बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ रीजन. एंड मोर ओवर, इसके अलावा मार्गी डिड नॉट लाइक हर स्कूल. मार्गी तो अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था. बिकॉज देयर वॉज लॉट्स ऑफ रीजन. उसके बहुत सारे कारण थे. द स्कूल सी स्टडी डज नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, एनी क्लासरूम्स. इन फैक्ट इट डजेंट हैव
एनी रिसेस या प्ले ग्राउंड द स्कूल ऑफ द मार्गी का जो स्कूल था, इट डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रेसेस, इट डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, ग्राउंड या प्लेमेट्स, ना तो उसके प्लेमेट थे, ना उसके बिल्डिंग थी, और ना ही उसकी क्लासेस थी। इनफैक्ट एक काइंड ऑफ वर्चुअल रूम, ये जो क्लास था, ये जो मार्गी का जो स्कूल था, इट वाज एक वर्चुअल रूम, एक तरह से वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कूल था। मार्गी एंड टॉमी स्टडीड इन ए वर्चुअल क्लासरूम, मार्गी और टॉमी एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते थे। दे हैव रोबोट्स एज टीचर्स एंड देयर टीचर्स वर रोबोट, उनके जो टीचर्स थे वो रोबोट थे, दे वर टेक्नोलॉजीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर स्कूल इज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और इसके भी अलावा उनके जो स्कूल थे वो उनके बेडरूम के जस्ट पास में थे। So student, it is a room full of electronics, robots and gadgets. So the school of the मार्गीज एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी के जो स्कूल थे, दे वर नॉट एक्चुअल दी बिल्डिंग, वे कोई बिल्डिंग नहीं थे। इनफैक्ट दिस वाज अ रूम, एक रूम था, दैट इज नेक्स्ट टू देयर बेडरूम, जो उनकी बेडरूम के बगल में ही था। एंड द रूम इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लाइक रोबोट्स एंड गैजेट्स। The computer software teaches her everything, and the computer software, a robotic teacher teaches them everything. एक रोबोट टीचर होता था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता था जिसके थ्रू वो स्टडी करते थे। When Margie attend her school after learning about the earlier one, she starts wondering. Now when Margie is in the classroom, जब मार्गी अपने क्लास में है, now she is thinking about the school of the ancient time, वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है। एंड वॉन्डरिंग, और सी इज एस्टॉनिंग, और उसको बहुत ही सरप्राइज हो रहा है कि वेन शी स्टार्ट्स स्टडिंग शी कैन नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट द अर्लियर डेज, शी इज़ नॉट गेटिंग इंटरेस्ट इन द स्टडिंग, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बिकॉज शी इज़ थिंकिंग अबाउट द डेज ऑफ द अर्लियर डे, क्योंकि उसको पहले के दिन याद आ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द स्कूल्स वर यूज टू इन दी पास्ट टाइम, किस तरह के स्कूल पास्ट टाइम में होते थे। हाउ चिल्ड्रंस वर केम फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस इनटू अ बिल्डिंग, कैसे बच्चे अलग अलग घरों से बिल्डिंग में आते थे, एंड दे वर सिट टुगेदर, वे एक साथ बैठते थे, एंड हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की सहायता किया करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्गी वंडर्स हाउ द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज, नाउ शी इज थिंकिंग, अब वो सोच रही है कितना फन उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने स्कूल में किया होगा। She imagine kids from different neighborhood coming together merely to attend school, and she is also thinking, वो ये भी सोच रहे कि किस तरह बच्चे अलग अलग घरों से उस स्कूल में आते थे, and they were enjoying in the school, कैसे उन्हें स्कूल में फन करने को मिलता था, साथ में पढ़ने को मिलता था, एंड हेल्पिंग ऑल्सो ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करने को भी मिलता था। मोर ओवर द फैक्ट डैट दे वर टॉट द सेम थिंग अम्यूज्ड हर, एंड द मोर ओवर द फैक्ट, सबसे ज़्यादा प्लेजरिंग थिंग ये था कि ऑल द थिंग्स वेयर टॉट टुगेदर, सभी चीज़ें बच्चों को एक साथ पढ़ाई जाती थी ऑफ द सेम एज ग्रुप। इट वॉज बिकॉज एवरी वन वुड हेल्प ईच अदर आउट विद द होमवर्क, एंड ऑल द चिल्ड्रेन वेयर हेल्पिंग ईच अदर इन डूइंग द होमवर्क। Thus in the end she is left wondering about the fun they had, इस तरह से मार्गी इज़ थिंकिंग अबाउट द स्कूल ऑफ द एंशिएंट टाइम, मार्गी प्राचीन समय के स्कूल के बारे में सोच रही है, एंड सी इज़ फीलिंग प्लेजर इन थिंकिंग डैट, और उन सब बातों को सोच के उसको बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। टू सम अप द फन दे हैड समरी, दिस चैप्टर थ्रो लाइट ऑन emerging technology and how it is overtaking the world. The main conclusion of this chapter is that technology has advanced and it has occupied each and every place of our life in the future time. इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होकर इस हमारे लाइफ के हर एक पार्ट्स को कवर कर रहा है। Thus in the near future it would not be surprising if teachers were replaced by robot, and it would not be surprising thing, और ये कोई सोचने की बात नहीं होगी, ना ही कोई मतलब astonished things होगा कि if there were no teachers and the place of the teacher will be occupied by the robot। ये भी हो सकता है कि आने वाले जनरेशन में टीचर्स ना हो के रोबोट ही टीचिंग कराएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एंड वन थिंग आई ऑल्सो मेंशन हियर, और एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी
that the way I am teaching you, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ, this is not the this is based on technology, semi technology way. It is not the actual way that there is a robot who is teaching you. यहाँ कोई रोबोट नहीं है जो आपको पढ़ा रहा है. इनफैक्ट आई एम ह्यूमन बींग, मैं खुद एक ह्यूमन बींग हूँ. एंड वी आर जस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ द डिवाइस टेक्नोलॉजी. हम बस टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं. योर स्टडी इज़ नॉट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दी टेक्नोलॉजी. आपका जो पूरी स्टडी हो टेक्नोलॉजी वो बेस्ड नहीं हो गया है. टीचर्स आर स्टिल एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड. अभी भी टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं हु इज़ ह्यूमन बींग, जो कि ह्यूमन बींग है. So this is the summary of the first chapter, whose name is which name is the fun they had. And in the next video we will discuss the explanation of this chapter. So तब तक you revise it and read it.